Hello everyone, welcome to Tarun IS. This is your host and host Shivam Shukla. So I am back with the episode 6 in the series which we are continuing from the last week. The series name is Daily Current Affairs, Top 75 Issues in News. This series is very important with respect to the demand of the mains 2023 issues. We will be covering most important issues that can be directly asked in UPSC mains of 2023, as well as there is possibility that it can be asked in 2024 also, and some of the questions can be asked directly in prelims also. Okay, and we will be covering in this series, we are covering all of the issue in introduction, body and conclusion format in complete detail, and you will be getting so many prelims factual details also. Okay, so the topic for today is internet shutdown. Okay, internet shutdown. This has been happening for quite a long time, and many reports have come up for this. And recently you must have heard about the Manipur crisis, and there also internet shutdown has been in place for more than 40 days, 50 days. Okay, so let's start. Let's look into the issue in detail. So first of all, the first aspect, why in news, why this particular issue I have chosen, because this thing has been happening for quite a long time. Kashmir and then Uttar Pradesh and then other states जहाँ पे भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर की, वहाँ सबसे पहला काम होता है इंटरनेट शटडाउन. जैसे आपने पीएम का अभी जो अमृतसर में भी एक इशू हो रहा था, तब वहाँ पे भी इंटरनेट शटडाउन किया था फॉर सम डेज. सो दिस हैज़ बीन, एंड इन इंडिया की लास्ट आई थिंक 5 और 6 ईयर से नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन इंडिया में वर्ल्ड में हाईएस्ट आ रहा है. ओके, सो इंडिया का काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है फॉर दिस थिंग. दैट्स वाई आई हैव चोजन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और इस पर क्वेश्चन बन सकता है आराम से. ठीक है, सो वाई इन न्यूज़. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय एक्सिस नाउ एंड कीप इट ऑन कोएलिशन, ये एक एनजीओ का एक बड़ी एसोसिएशन है, उसकी रिपोर्ट पब्लिश करता है ये. India enforced as many as 84 internet shutdowns in 2022 and was on the top of the list for the 5th year in a row. यानी पिछले 5 साल से इंडिया टॉप पे आ रहा है नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन इंडिया. ठीक है, थ्रू आउट द ईयर. In the most recent incident, what has happened? Manipur has imposed state-wide internet shutdown to curb violence, citing prevention of misuse, rumors and hateful content. पहला काम जो गवर्नमेंट करती है, कभी भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई, सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन कर देती है. एंड ठीक है, गवर्नमेंट कर तो देती है इंटरनेट शटडाउन, बट यू नो काफ़ी सारे जॉब्स, काफ़ी सारे बिजनेसेस जो डायरेक्टली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करते हैं, दे गेट टोटली डिसरप्टेड. ठीक है, और इसकी वजह से पूरी इकोनॉमी आजकल रुक जाती है. डिजिटल इंडिया का युग चल रहा है, तो इट गेट स्टॉप्ड. ठीक है, तो देयर आर मैनी और साथ में आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली बात भी है कि भाई फंडामेंटल राइट है, बट आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे. जस्ट बिकॉज उनके हाथ में पावर है, अनलिमिटेड पावर है, तो वो पूरा ही रोक देते हैं. आप ट्रैक करो ना, रेगुलेट करो. सो दिस थिंग इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, सो व्हेन दैट पर्टिकुलर इंटरनेट शटडाउन हैपेंड, people approached Manipur High Court to grant limited internet access. ठीक है, so the petitioners wanted the restoration of the internet services because many of the important services were getting disrupted because of it. So Manipur High Court granted limited internet access for specific and designated places. So this has been the point. Here you can see a picture जहाँ पे साइबर कैफे बंद पड़ा हुआ है जस्ट बिकॉज पेमेंट भी रुक गया होगा. सोचो, आजकल पूरी इकोनॉमी डिजिटल हो गई और इंटरनेट बंद हो जाए, यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट इंटरनेट. ओके, सो दिस इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड अ लॉट. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इंटरनेट शटडाउन्स. बेसिक डेफिनेशन इफ आस्क्ड, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू डिफाइन इट. ठीक है, तो व्हाट शुड बी द डेफिनेशन? इंटरनेट शटडाउन्स आर डिलिबरेट एक्शंस, मीन्स कॉन्शियस एक्शंस by the governments or entities acting on behalf of the government to disrupt access to and use of information and communication systems online. मतलब जितने भी ऑनलाइन टूल्स हैं इंटरनेट चलाने के, वहाँ पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज देन एंड देयर रुक जाए. ठीक है, और ये कर कौन सकता है? आइदर गवर्नमेंट एंड समवन ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ये होता है. Shutdown can involve complete blocks of internet.
समटाइम्स कंप्लीट ब्लॉक्स इंटरनेट कनेक्टिविटी का हो जाता है, या फिर लिमिटेड एक्सेस थ्रू थ्रॉटलिंग बैंडविड्थ और रेस्ट्रिक्टिंग मोबाइल सर्विसेज टू 2G, या स्पीड डाउन कर देते हैं, या कंप्लीटली इंटरनेट ब्लॉक कर देते हैं, या कुछ पर्टिकुलर साइट्स को वो ब्लॉक कर देते हैं. इट टेक्स प्लेस इन दीज वेरियस मोड्स. ठीक है. ये जो रिपोर्ट आई उसने एक टर्म यूज किया, डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म. ओके, किस टर्म्स में कि भाई इंडिया में इतना ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हो रहा है कि इट लुक्स लाइक कि गवर्नमेंट इज गेटिंग अथॉरिटेटिव ऑन द डिजिटल पार्ट. ओके, सो इट इन्वॉल्व्स, सो आई हैव डिफाइंड दिस पर्टिकुलर टर्म ऑल्सो. ठीक है, कि आपसे डायरेक्टली डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म के संबंध में कुछ पूछ सकता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है और एक मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है. सो डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म वैसे एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जो जैसे पूरा एक्सेस टू द पावर एंड एक्सेस टू सारा जो कंट्रोल करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज जितनी कंट्रोल की जाती हैं थ्रू द डिजिटल एरा. ठीक है, बट स्पेसिफिकली इन केस इन लिंकेज टू इंटरनेट शटडाउन्स, it involves government exerting control over information and communication technologies. ICT को के ऊपर अपना अथॉरिटी वो exert करते हैं. Shutdowns are employed to suppress dissent. If someone is opposing the moves of the government, they try to suppress this particular dissent. To restrict free speech. मतलब फ्रीली जो कुछ भी बोला जा रहा है, ठीक है, एक ये होता है कि भाई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाओ, बट पूरा कंप्लीट बैन या कंप्लीट शटडाउन कर देना इज डेफिनेटली द restrictions of the free speech, which is a fundamental right in our constitution. And also, what is other motive? To control the flow of information, limiting citizens access to the online platforms. आप इंटरनेट चला ही नहीं पाओगे. So this thing is getting can be definitely called digital authoritarianism. ठीक है, मतलब it depends on the motive कि किस मोटिव से ये किया जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑन इंटरनेट शटडाउन्स. ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई जिसका मैंने अभी वर्णन किया था, विच आई डिस्क्राइब्ड. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देख लिया कि देखिए क्या बोला है इसने. ठीक है, तो 2 चैप्टर्स में मैंने इसको लिया है, 2 स्लाइड्स में, एक ग्लोबल सिनेरियो एंड इंडियन सिनेरियो. ग्लोबल सिनेरियो में आप देख लो टॉप 5 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट शटडाउन 2018 से लेकर, यहाँ से देखो 2018 से लेकर 2022 तक इंडिया हर बार टॉप पे रहा है. ठीक है, और नंबर ऑफ ब्लॉकेजेस, नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स वैसे कम हुआ है, बट हर बार 100 से ज़्यादा है. पहली बार ऐसा हुआ है 2022 में कि 84 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन को 100 के कम नीचे आया, बट इंडिया इज कंसिस्टेंटली ऑन टॉप. और कहाँ हम इंडिया को एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बुला रहे हैं, डेफिनेटली इसीलिए इसको इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है. सेकेंड रैंक्स आप देख लो, यूक्रेन, म्यांमार, यमन, वेनेजुएला एंड पाकिस्तान. मतलब ऐसे रॉग स्टेट्स जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, वहाँ पे अगर किया भी जा रहा है इंटरनेट शटडाउन तो एक जस्टिफाइड मैनर है. बट इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग और काफ़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और जिस तरह से लूजली गवर्नमेंट्स कुछ भी हुआ, मतलब इट्स लाइक के मक्खी ने, मतलब मच्छर उड़ के आया एंड दे आर डूइंग इंटरनेट शटडाउन. ये चीज़, इसका जितना लूजली इस पर्टिकुलर पावर को यूज़ कर रहे हैं ना, इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आपने डेटा देख लिया. ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट? दे आर सेइंग इंटरनेट शटडाउन आज कंसिडर्ड एज एक्ट्स ऑफ डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म. रिपोर्ट ने सीधा सीधा ये बात बोली है कि भाई आप इंटरनेट बंद कर रहे हो, मतलब आप बेसिक राइट, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर से के साथ आज इंटरनेट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपकी सारी सर्विसेज रुक जाती हैं. ठीक है, योर स्मार्टफोन बिकम्स अ डब्बा विदाउट इंटरनेट. ठीक है, योर ऑल ऑफ द एक्टिविटीज, ऑल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज गेट स्टॉप्ड. ठीक है, अथॉरिटीज एम्प्लॉय शटडाउन्स टू कंसील राइट वायलेशन. मतलब ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हो रहे होते हैं उनको छुपाने के लिए करती हैं ऐसा. डिसरप्ट कम्युनिकेशन, जो भी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहा है दैट मे इंसाइट वायलेंस, मतलब लॉ यही कहता है कि अगर वायलेंस इंसाइट हो सकता है तो आप डिसरप्ट कर सकते हो. एंड इम्पीड द प्रोविजन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड एंड ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग. ठीक है, तो जो ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाती है वो सब रुक जाता है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट शटडाउन, क्योंकि असली पिक्चर नहीं सामने आ पाती. नेक्स्ट इज, उन्होंने क्या बोला कि इन 2022 एटलीस्ट 187 इंटरनेट शटडाउन्स वर रिकॉर्डेड अक्रॉस 35 कंट्रीज. यूक्रेन हैड द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ शटडाउन्स, फॉलोड बाय ईरान,
and then Myanmar 7. So highest were in India 84. It's very high. The number is very high. ठीक है. People in Tigray region, Ethiopia, endured over 2 years of a full communications blackout, while regions in Myanmar remained disconnected for over 500 days. कौन से वाले वायलेंस की वजह से आपको बताना है, कौन से वाले? रोहिंग्या वायलेंस, रोहिंग्यास पे जो वायलेंस हो रहा था उसकी वजह से, और जो मिलिट्री कू हुआ, ठीक है, अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसकी वजह से इंटरनेट शटडाउन म्यांमार में रहा. ठीक है, आगे चलते हैं. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ करंट स्टेट ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स. ठीक है, इफ इट शुड बी विजिबल टू यू आई गेस. ठीक है, तो इसमें एज यू कैन सी टोटल नंबर ऑफ शटडाउन्स यहाँ पे शो कर रहा है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई 187 जो थे वो बढ़ गए, और टोटल नंबर ऑफ शटडाउन्स विदाउट इंडिया इज 103, बट विथ इंडिया इट इज बिकमिंग 187 विच इज अ लॉट. ठीक है, और हर बार जो हाईएस्ट कब था इन 2019, उसमें भी इंडिया ने ही बहुत ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किया है. और यहाँ पे आप कंट्रीज़ का वो देख सकते हो नंबर. इंडिया ने 84 किया इस बार, सबसे हाईएस्ट. सेकंड में तो यूक्रेन, थर्ड इज ईरान. तो इंडिया का कंपैरिजन ईरान जैसे नेशन से किया जा रहा है, जहाँ पे अपना धर्म प्रैक्टिस करने की ही आज़ादी नहीं है, वेमेन की कंडीशन बहुत डिप्लोरेबल है. ठीक है, और इवन अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज़ में 2 बार शटडाउन हुआ है बस, फासो, क्यूबा. तो दिस इज़ अ स्टेट ऑफ वरी फॉर इंडिया. ठीक है, और नंबर ऑफ कंट्रीज भी बढ़ गए हैं. पहले 25 थे 2016 में, अब जाके 35 कंट्रीज इंटरनेट शटडाउन को की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो वरीसम. ओके, नेक्स्ट इज, तो दिस वाज द स्टेट ऑफ एट द ग्लोबल लेवल. लेट्स सी द स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ डेटा. ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो, इंडिया इन्फोर्स्ड 84 इंटरनेट शटडाउन्स इन 2022. ठीक है, maintaining its position at the top country for the 5th consecutive year. सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन कहाँ हुआ? जम्मू एंड कश्मीर had the highest number of shutdowns, followed by Rajasthan and West Bengal. ठीक है, that is very worrisome. ठीक है, कि भाई इंटरनेट, आप छोटी सी बात पे इंटरनेट क्यों शटडाउन कर देते हो? ठीक है, एंड इंटरनेट शटडाउन्स इन इंडिया वर यूज्ड ड्यूरिंग, कब हुआ है, व्हाट वर द रीजंस? इलेक्शंस के टाइम किया शटडाउन. नेक्स्ट प्रोटेस्ट के टाइम किया, कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है आप इंटरनेट शटडाउन कर दिया. नेक्स्ट इज स्कूल एग्जाम्स चल रहा है, इवन नकल ना हो इस चीज़ को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन. दैट इज एक्सट्रीम स्टेप. ठीक है, आप बच्चों को भी ट्रस्ट नहीं कर रहे. नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए इंटरनेट शटडाउन. ठीक है, जम्मू कश्मीर का डेटा दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट शटडाउन लास्टिंग 18 months फ्रॉम 2019 to 21, जब 370 आर्टिकल हटाया गया था फ्रॉम द जम्मू कश्मीर. द लॉन्गेस्ट एवर शटडाउन हुआ किसी भी कंट्री के हिसाब से, हाईएस्ट एवर, लॉन्गेस्ट टाइम एवर. मणिपुर implemented an internet ban for over 40 days during ethnic violence. This is the data. As you can see, पहले 75 and 30 था. ठीक है, विद मतलब ग्लोबल लेवल पे जब 75 हुए तब इंडिया में 30 हुए. ठीक है, जब ग्लोबल लेवल पे 106 हुए, इंडिया के 69, जो कि बहुत ज़्यादा है, मोर देन 50%, 70% के आसपास, 65% ऑफ द वर्ल्ड्स इंटरनेट शटडाउन इज हैपनिंग इन इंडिया. इट इज़ वेरी लार्ज फिगर. ठीक है, फिर आप जैसे जैसे आप देखते जा रहे हो कि इंडिया का कम तो होता जा रहा है, बट स्टिल इट इज़ वेरी हाई अदर कंपेयर टू द अदर कंट्रीज. इंडिया में इतना फ्रीक्वेंटली और इतनी लूजली इंटरनेट शटडाउन हो रहा है कि डेफिनेटली कोई भी सोचेगा जब आप डेटा देखोगे तो भाई इतना ऐसा हम क्या कर रहे हैं इंडियंस, है ना, मतलब इतनी क्या पावर आ गई गवर्नमेंट के पास. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड इन इंटरनेट शटडाउन्स. ठीक है, ये जो है थोड़ा सा साइंस एंड टेक रिलेटेड एस्पेक्ट है. इसमें आपकी ये जो टर्म्स हैं इनका बेसिक मीनिंग आप समझ लो, इसीलिए मैंने ये वाला पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऐड किया है. फर्स्ट वे टू डू इंटरनेट शटडाउन, टू शट डाउन द इंटरनेट इज DNS टैम्परिंग, मतलब डोमेन नेम सर्वर. DNS एक मतलब एक सर्वर जहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, उस पर्टिकुलर सर्वर से डाउन कर दिया जाता है. ऑफिशियल्स कैन डी रजिस्टर अ डोमेन hosting undesirable content, making it inaccessible by preventing domain to IP address translation. ठीक है,
तो पहले तो आप जानते हो कि हर एक डिवाइस जो भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ से हो रहा है वो आईपी एड्रेस के थ्रू होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस का एक इट्स लाइक द एड्रेस टू योर कंप्यूटर या टू योर सर्वर जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। तो जो आप कोई भी वेबसाइट जब एक्सेस करते हो तो आप उसका जब आप वेबसाइट डाल रहे हो, ठीक है, वेबसाइट का नाम आपने डाला तो उसके बैकग्राउंड में वो उस आईपी एड्रेस को ले रहा है, ठीक है। वो आईपी एड्रेस तक इन्फॉर्मेशन जाएगी कि आई वांट दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, फिर वो सर्वर से आइडेंटिफाई करेगा और उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आपका डीएनएस के थ्रू, डोमेन नेम सर्वर के थ्रू, मतलब उसको एक तरह से इनकैप्सुलेशन होता है। ऊपर आपके फ्रंट एंड में आपको www.something दिख रहा है, बट उसके बैकग्राउंड में एक आईपी एड्रेस की ही डिटेल जाती है। तो उस पर्टिकुलर चीज को वो रोक देते हैं कि डोमेन से आईपी एड्रेस का जो ट्रांसलेशन होता है, जो कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट करता है, वो दैट थिंग स्टॉप्स। व्हाट डू दे डू कि दे डी रजिस्टर अ पर्टिकुलर डोमेन, जैसे www.tarunis.com, ठीक है, ये एक डोमेन नेम है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। आपको हमारी वेबसाइट से अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू विल टाइप आवर एड्रेस, ठीक है। अब उस एड्रेस को ही मैंने हटा दिया सिस्टम से, तो आप उस पर डाल के सर्च करोगे तो वो खुलेगी ही नहीं वो वेबसाइट। तो इस तरह से हो गया कि भाई डीएनएस टेम्परिंग कर दी, जिस पर्टिकुलर एड्रेस को आप फेच करना चाह रहे हो वो आ ही नहीं रहा। वन इज दैट वे। नेक्स्ट इज आईपी ब्लॉकिंग। गवर्नमेंट्स कंट्रोलिंग द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैन ब्लैकलिस्ट स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस और टारगेटेड वेबसाइट्स। आईपी एड्रेस ही ब्लॉक कर दो। एक तो डीएनएस एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसको उसकी जगह डी रजिस्टर कर दो कि भाई इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से ये वाला डीएनएस जुड़ा था, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। एक तरीका ये। दूसरा ये कि वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ही ब्लॉक कर दिया हमेशा के लिए, वो आईपी एड्रेस को कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। थर्ड हो गया यूआरएल फिल्टरिंग। रिक्वेस्टेड यूआरएल स्ट्रिंग इज स्कैन्ड फॉर फॉरबिडन टर्म्स एंड इफ फाउंड कनेक्शन इज रीसेट। आपने कई बार कोशिश की होगी, यू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर वेबसाइट एंड वहां पे लिखा हुआ आता है ब्लॉक्ड बाय द गवर्नमेंट, ब्लॉक्ड विद द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू सम वायलेशन। तो यही चीज होती है, वो पर्टिकुलर वेबसाइट्स को बैन कर देते हैं, यूआरएल की लिस्ट दे देते हैं कि ये वेबसाइट इंडिया में नहीं चलेंगी या बैन हो जाएंगी। दिस वे इट ऑल्सो हैपन्स। नेक्स्ट इज लेस कॉमन स्ट्रेटेजी, जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होती। इसमें होता है आईपी ब्लॉकिंग एंड कीवर्ड फिल्टरिंग which are often employed for widespread internet censorship। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स हैं कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हो या मतलब इफ यू ट्राई टू एक्सेस दैट कंटेंट तो आपके वो सर्च रिजल्ट्स आएंगे ही नहीं, ठीक है। इवन सम ट्रैकर्स विल टेक केयर कि अगर आपने सर्च किया तो गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई करके उसको ऑटोमेटिकली रिपोर्ट भी कर सकता है कोई बॉट, ठीक है, मतलब जो चैट बॉट्स होते हैं या बॉट्स होते हैं। तो दिस पर्टिकुलर थिंग हैपन्स, ठीक है। तो इट्स लाइक कीवर्ड फिल्टरिंग, या तो आप पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को फिल्टर कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, या फिर एक पर्टिकुलर कीवर्ड को ही वो लोग रोक देते हैं कि इस पर जो भी सर्च करे उस पर कुछ आए ही ना। दिस ऑल्सो हैपन्स। तो दीज आर लेस कॉमन स्ट्रेटेजीज। तो दीज आर टेक्निकल रिलेटेड एस्पेक्ट जो मैंने आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर इंटरनेट शटडाउन। पावर कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास, ऐसे कौन से लॉज हैं इन प्लेस या कौन से आर्टिकल्स हैं जिसको गवर्नमेंट यूज करती है टू ब्लॉक द इंटरनेट, टू शट डाउन द इंटरनेट। द फर्स्ट वन इज टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स। 2017 में गवर्नमेंट ने बनाए थे। जब भी क्रिटिकल टाइम आए, कोई पब्लिक इमरजेंसी का टाइम आएगा तो दे कैन शट डाउन इंटरनेट सर्विसेज। तो गवर्नमेंट्स इट गवर्न्स द टेलीकॉम सर्विस सस्पेंशंस इंक्लूडिंग इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। इट अलाउज टेम्परेरी शटडाउन्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इमरजेंसी अप टू 15 days एट वंस, यानी एक बार में आप 15 दिन तक के लिए इंटरनेट बंद कर सकते हो। एंड ऑर्डर्स इश्यूज बाय द सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और स्टेट गवर्नमेंट्स होम डिपार्टमेंट। तो हु इज ऑथराइज्ड टू शट डाउन इंटरनेट, कौन ये आदेश पारित करता है, दिस होम मिनिस्ट्री, आइदर एट द सेंट्रल लेवल और एट द स्टेट लेवल, ठीक है। तो जैसे मणिपुर है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ मणिपुर ने ये पर्टिकुलर ऑर्डर निकाला होगा कि इंटरनेट को ब्लॉक कर दो या शट डाउन कर दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन इज आईटी एक्ट ऑफ 2000, ठीक है, 69A, सेक्शन 69A। It gives government the power to block public access to information through computer resources, ठीक है। इसके थ्रू, ये आप याद रख सकते हो, आप इसको कोट भी कर सकते हो इन योर आंसर्स। दिस इंक्लूड
नेशनल इंटरेस्ट किस ग्राउंड पे कर सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट पब्लिक ऑर्डर अगर बिगड़ रहा है तो उस ग्राउंड पे, एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस जिनमें जमानत नहीं मिलती, बेलेबल नहीं होते जो, ठीक है, इन सारे केसेस में आईटी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट आपका इंटरनेट रोक सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, ये ब्रिटिश एरा का लॉ है। इट ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू डिस्कनेक्ट और इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन सर्विसेज, डिस्कनेक्ट कर सकती है आपकी, मतलब आप कॉल भी आपका रोक सकती है, और या फिर इंटरसेप्ट कर सकती है, आप जो भी बोल रहे हो, बात कर रहे हो, वो भी सुन सकते हैं, जिसको फोन टैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, और इंटरनेट पे भी आपकी बातें सुन सकती है। इसमें व्हाट आर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, इसमें है पब्लिक ऑर्डर के बिहाफ पे, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक सेफ्टी, इसके ग्राउंड्स पे ये लोग शट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी रूल्स, ये तो सेम ही है, ठीक है, तो इसमें बता दिया मैंने कि इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर टेम्परेरी सस्पेंशन इंक्लूडिंग इंटरनेट शटडाउन्स। नेक्स्ट इज ओके, रैशनल बिहाइंड इंटरनेट सर्विसेज के सस्पेंशन, इंटरनेट शटडाउन करते क्यों हैं, क्या लॉजिक देती है गवर्नमेंट, टू मेंटेन पीस, लॉ एंड ऑर्डर, सबसे सिंपल, प्रोवाइड मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रिवेंट, कि भाई कोई जैसे मान लो कहीं एथनिक या कम्युनल टेंशंस हो गए, ठीक है, मतलब दो कम्युनिटीज के बीच में आपस में लड़ रहे हैं, तो कोई भी एक इन्फॉर्मेशन, कोई भी एक अफवाह, इट कैन डिस्ट्रॉय द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज एंड हेट स्पीच, कोई भी एक छोटी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो चाहे सही ना हो, कोई डॉक्टर्ड वीडियो, कोई डॉक्टर्ड फोटो, मतलब बहुत सारा सोशल हार्मनी बिगाड़ सकता है उस पर्टिकुलर एरिया का, तो इसको मेंटेन करने के लिए पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसलिए लोग शट डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी जैसे काउंटर टेररिज्म एंड प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, प्रिवेंट कम्युनिकेशन चैनल्स यूज्ड फॉर नेफारियस एक्टिविटीज, नेफेरियस एक्टिविटीज मतलब फॉर एग्जांपल टेररिस्ट आपस में, आईएस वाले आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कुछ, सपोज बॉम्ब बॉम्ब इम्प्लांट करने वाली इंफॉर्मेशन या ऐसी कुछ भी चीज़ है जो एंटी नेशनल है, विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल सिक्योरिटी खतरा हो सकता है, किसी पर्टिकुलर हाई अथॉरिटी की मारने वाली ऐसी कुछ बातें चल रही हों, ये सारी चीज़ें ये ब्लॉक करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कर्बिंग चीटिंग इन एग्जाम्स, ये भी एक रीज़न दिया जाता है जो अभी आपने सुना था, स्टॉप स्टूडेंट्स फ्रॉम यूजिंग द इंटरनेट टू चीट, ठीक है, इसके लिए भी कर सकते हैं। फोर्थ इज प्रिवेंटिंग सिविल अनरेस्ट, ठीक है, सिविल अनरेस्ट एंड एनार्की, एनार्की मीन्स एब्सेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी बाय रिस्ट्रिक्टिंग डिसरप्टिव रूमर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्बैटिंग रूमर्स एंड फेक न्यूज, वो सेम ही है पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग सॉवरेंटी, रेगुलेट द इंटरनेट इन लाइन विद द नेशनल इंटरेस्ट एंड सॉवरेंटी, वही कीवर्ड्स लगभग रिपीट हो रहे हैं जो गवर्नमेंट घुमा फिरा के यूज करती रहती है, ठीक है। तो दीज आर द रैशनल बिहाइंड यूजेज ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ शटडाउन्स, कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसको आप और भी हेडिंग्स में दे सकते हो कि कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन, ठीक है, क्या इकोनॉमिक कॉस्ट, क्या पॉलिटिकल कॉस्ट है इसकी, ठीक है। सबसे पहला है इकोनॉमिक, सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई पूरा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बैठ जाता है, कैसे, इंटरनेट शटडाउन ग्लोबली हैव रिजल्टेड इन लॉसेस ऑफ $20 बिलियन, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया सोच रहा है $5 ट्रिलियन बनने का, अभी 1 पॉइंट समथिंग बना है, ठीक है, 1.2 मे बी 2 और 3 बिलियन डॉलर इकोनॉमी भी बना है इंडिया, और यहाँ पे $20 बिलियन, ये तो ट्रिलियन है, ठीक है, इतना मतलब किसी देश का पूरा जीडीपी होता है, इतनी इकोनॉमी का नुकसान होता है। इंडिया अकाउंटेड फॉर 75% ऑफ द ग्लोबल वैल्यू लॉस, इंडिया के इंटरनेट रोकने से 70% जो नुकसान जितना हो रहा है 20 बिलियन का, 70% इंडिया की वजह से हुआ है, ठीक है, विद एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 2.8 बिलियन, दैट इज वेरी हाई, ठीक है। इसका सोर्स हमने यूज किया टॉप 10 VPN, ये वाली वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा डेटा। नेक्स्ट इज हेल्थ डिसरप्शंस, shut down disrupt critical health information and telemedicine services. For example, long-standing connectivity restrictions in Kashmir undermined remote education, impacting students' learning. ठीक है, ये किसने बोला है, UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने ऐसा बोला है कि भाई लर्निंग रुक जाती है, आजकल टेलीमेडिसिन पढ़ाई भी आजकल उसके थ्रू हो रही है ना, इंटरनेट के थ्रू, तो काफ़ी सारी चीज़ें रुक जाती हैं, ठीक है। कई जगह सैटेलाइट क्लासेस वाला सिस्टम है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स पूरे रुक गए थे, तो हेल्थ के लेवल पे टेलीमेडिसिन जो होती है, आप डॉक्टर्स जो ऑनलाइन इलाज करते हैं, दैट ऑल्सो गॉट स्टॉप्ड। पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी,
Shutdown undermine digital tools for campaigning, discussion, political discussion, voting and electoral oversight in limiting political transparency and accountability. ठीक है, अगर आपने इंटरनेट शटडाउन कर दिया तो अगर सोशल मीडिया के थ्रू जो भी कैंपेनिंग हो रही है इट इज आउट इन ओपन, सबके सामने हो रही है, ठीक है, पूरा ट्रांसपेरेंट वे से होता है, बट आप इंटरनेट शटडाउन करके तो वो बहुत छिपे रूप में और वैसी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं हमारी अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशन सेटबैक्स, ठीक है। एजुकेशन सेटबैक्स में क्या है, शटडाउन डिसरप्ट लर्निंग आउटकम्स एंड कम्युनिकेशन अमंग टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड फैमिली, सब रुक जाते हैं, ठीक है। इन इंडिया शटडाउन्स हिंडर्ड एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। जहां जहां शटडाउन कोविड-19 के टाइम हुआ था वहां पे ये चीज डेफिनेटली देखी गई है, दिस हैज बीन कोटेड इन ICRI रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल डिसरप्शंस। शटडाउन हिंडर बेसिक कम्युनिकेशन, लोग आपस में बात करना उनका बंद हो जाता है, व्हाट्सएप बंद हो जाए, सोचो आप कैसे किसी से बात करोगे, सिर्फ कॉलिंग चालू है, ठीक है, तो ये काफ़ी, अब आदमी बिना व्हाट्सएप ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं समझ सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, अफेक्टिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फैमिली समटाइम्स, ठीक है। अब उनकी आप सोचो जो विदेश में है, ठीक है, और इंटरनेट कॉल्स इज़ वेरी नॉट वेरी अफोर्डेबल, तो उनके लिए कैसे काम चलेगा, पहले वो मतलब इसके थ्रू कर ले रहे थे बात व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू, बट ये सब रुक जाएगा, क्रिएटिंग अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। अब जब ये छोटी छोटी बात पे वो इंटरनेट शट डाउन कर दे रहे हैं, उनकी रोजी रोटी की रुक जा रही है, अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली अ ट्रस्ट डेफिसिट गेट्स क्रिएटेड विद इन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, कि भाई ये तो हमारी सुनती नहीं, कुछ भी करती है गवर्नमेंट ऐसा। Violation of fundamental rights. This is the most important point against this argument of internet shutdown. Shutdowns compromise fundamental rights such as freedom of speech and Article 19, business again 19, healthcare access Article 21, dissent again right to strike, ठीक है, and movement again Article 19. The Kerala High Court recognized the right to internet access as a fundamental right under Article 21 of the Constitution. दिस पर्टिकुलर केस नेम फहीमा शरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, आप यहाँ पे कोट कर सकते हो कि भाई कोर्ट ने खुद बोला है, हाई कोर्ट ने, कि राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज द फंडामेंटल राइट, ठीक है, अब आप रोक रहे हो तो उसको उसके फंडामेंटल राइट से आप वंचित कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ सम रैंडम थिंग्स, जितना लूजली आप यूज कर रहे हो। लीगल एंड ह्यूमन राइट्स implications. इंटरनेट शटडाउन वायलेट constitutional rights and international human rights laws. They impede freedom of expression, access to information, and hinder the work of journalists and activists. हर section of the society is getting affected because of this activity. ठीक है, shutdowns in Myanmar, for example, it cost nearly $2.8 billion and resulted in human rights violation. बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, जर्नलिस्ट वहाँ जो ऑन ग्राउंड हो रहा है दे आर नॉट एबल टू रिपोर्ट whatever cruelties are happening in the name of those जो मिलिट्री एक्शंस होते हैं उनकी, तो कितनी डेथ्स हो रही हैं उसका कोई काउंट नहीं रह जाता, ठीक है, सारा चीज़ जो है आप इंटरनेट आपने बंद कर दिया तो एक तरह से पूरा वर्ल्ड का व्यू मिलना बंद हो गया पूरे वर्ल्ड को कि व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर इम्पैक्ट, जो है मेजर इम्पैक्ट्स मैंने आपके यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। देन व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑन इंटरनेट शटडाउन्स, आपने ये देख लिया कि क्यों, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस इंटरनेट शटडाउन, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या व्यवस्था बनाई है, क्या बोला है इस पर्टिकुलर अलग अलग केसेस में, ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ हेडिंग्स के अंदर इसको कंपाइल किया है। लीगल, सबसे फर्स्ट एस्पेक्ट इज लीगल प्रोसीजर एंड अथॉरिटीज। सो सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड 2017 रूल्स, जो मैंने बताया था अभी, एज द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉर इंटरनेट शटडाउन इन पब्लिक इमरजेंसीज एंड फॉर पब्लिक सेफ्टी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है। Competent authority to issue such orders is typically the secretary to the Ministry of Home Affairs. मतलब बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, हर कोई ऐसे ही इतनी सेफ्टी मैकेनिज्म है कि आप केवल ये दो ग्राउंड्स पे, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी के ग्राउंड्स पे लगा सकते हो। दूसरा, केवल सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हो वही ये कर सकता है। एंड ऑर्डर्स मस्ट बी कन्फर्म्ड विद इन 24 आवर्स एज दे सीज टू एग्जिस्ट। अगर कंफर्म नहीं किया आपने इंटरनेट के ऑर्डर का, जो शटडाउन का जो ऑर्डर दिया है कोर्ट से, तो ये नहीं, मतलब वो हट जाएगा। नेक्स्ट इज
written reasons and review committee. Clear written reasons for internet shutdown orders must be provided. प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में आपको जो है रिकॉर्ड में देना होगा. रीजंस मस्ट बी फॉरवर्डेड टू अ रिव्यू कमिटी बाय द नेक्स्ट वर्किंग डे. आज आपने इंटरनेट शटडाउन किया, अगले दिन रिव्यू कमेटी पे जाएगा, कमेटी उसको रिव्यू करेगी कि इज द रीजन जस्टिफाइड. नेक्स्ट इज अपहोल्डिंग फंडामेंटल राइट्स. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट केस आ जाता है इन अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट upheld the right to freedom of speech and expression over the internet. Right to freedom of speech and expression का अगला aspect, you know, over internet. This is our fundamental right. तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है. फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन थ्रू द इंटरनेट वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट. क्योंकि दोनों चीजें रुक जाती हैं. आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है, आप अपना प्रोफेशन भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर बैन. ठीक है. Think of the IT professional, think of all those who depend on the digital marketing thing, you know, they are not able to do their work. Disclosure and judicial scrutiny. Supreme Court mandated the public disclosure of the legal basis for internet shutdown. आपको publicize करना पड़ेगा कि why did you do shutdown. Next is any order regarding internet shutdown is subjected to the judicial scrutiny. जो भी इंटरनेट शटडाउन वाला ऑर्डर आएगा उस पर जुडिशरी कभी भी इंटरवीन कर सकती है, सू मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती है. अमेंडमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस क्या दिया. अमेंडमेंट्स इन द नवंबर 2020 लिमिटेड इंटरनेट सस्पेंशन ऑर्डर्स टू अ मैक्सिमम ऑफ 15 डेज. पहले इंडेफिनिट टाइम के लिए हो जाता था, बट अब 15 डेज का लिमिट कर दिया है. स्टैंडिंग कमिटी, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी थी, उसने रिकमेंड किया है कि फर्दर चेंजेस एंड इश्यूड गाइडलाइंस टू एड्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स. ठीक है. तो दीज आर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. नेक्स्ट वी विल डिस्कस पार्लियामेंट्री पैनल. स्पेसिफिकली इस पे पार्लियामेंट्री पैनल ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेड अबाउट क्लियर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर. कमिटी अर्ज्ड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू एस्टैब्लिश क्लियर कट प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर. एक प्रोटोकॉल बनाओ कि किस चीज के तहत, किस क्राइटेरिया के तहत यू विल गो फॉर इंटरनेट शटडाउन्स, एम्फसाइजिंग प्रोपोर्शनैलिटी एंड कोऑर्डिनेशन विद द होम मिनिस्ट्री. डिपार्टमेंट और टेलीकॉम को क्लियर कट गाइडलाइंस बनानी चाहिए, कब करोगे, कब किस केस में नहीं करोगे. ठीक है, जिससे पब्लिक को पहले से पता रहे. सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस. इट रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बाय द डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इंटरनेट शटडाउन्स इम्पोज्ड बाय द स्टेट्स. डेटाबेस हो कि भाई कब कब लगाया, कितने टाइम के लिए लगाया. एक्सपेंडेड रिव्यू कमिटीज. द कमिटी सजेस्टेड एक्सपेंडिंग द रिव्यू कमिटीज responsible for assessing the internet suspension under the telecom suspension rules 2017 कि भाई रिव्यू कमिटी के मेंबर्स को बढ़ाओ. ठीक है, एक दो बंदे अगर आपके होते हैं तो वो रिव्यू भी बस नाम का रह जाएगा. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी. A study commissioned by Indian government to assess the economic impact of internet shutdowns was recommended. Insufficient data compilation. ठीक है, इसमें क्या है, कि आपने इंटरनेट शटडाउन तो कर दिया, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना हुआ, क्या हुआ, इसका भी आप एक मैंडेटेड स्टडी रखोगे, सो दैट यू गेट कॉशियस नेक्स्ट टाइम, आप नहीं करो ऐसी चीज़. लैक ऑफ सेंट्रलाइज डेटा. इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट कंपाइल डेटा ऑन इंटरनेट shutdowns imposed by the state governments, highlighting the need for a centralized data collection and public disclosure. स्टेट ने कब कितना इंटरनेट शटडाउन किया, इसका कोई डेटा सेंटर के पास नहीं होता. तो इसके इसमें देयर इज अ रिकमेंडेशन कि यू शुड स्टार्ट मेकिंग अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जिसपे हर स्टेट के, हर रीजन का रिकॉर्ड रहे कि भाई कब और क्यों आपने शटडाउन किया. सो दिस इज ऑल अबाउट द parliamentary panel recommendations. This is the final way forward कि how to go about it, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. So guiding principles for internet shutdown. UN Human Rights Office has given 6 principles for imposing internet shutdowns, including clear grounding in law. एक तो आपके लॉ में clear grounds mention होने चाहिए कि on which basis you will do so. Proportionality के हिसाब से इंटरनेट शटडाउन करना चाहिए. अगर छोटी सी जगह पे है कोई प्रॉब्लम तो यू शुड नॉट शट डाउन द इंटरनेट फॉर द एंटायर सिटी और मे बी इंटायर स्टेट. ये सब नहीं करना है आपको. प्रोपोर्शनल, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतने एरिया में आप शट डाउन करो. प्रायर ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन टू द पब्लिक. क्लियरली कम्युनिकेट करो, हैवीली पब्लिसाइज करो इस चीज़ को. देन रिड्रेस मैकेनिज्म्स. ठीक है, अगर फिर भी ये सब होने के बाद फिर भी ग्रीवेंस रह जाते हैं तो यू शुड लिसन टू पीपल. देयर शुड बी सम अथॉरिटी. सिलेक्टिव बैनिंग.
Consider selective banning of the specific apps or website prone to misinformation while keeping other internet services active. अगर प्रॉब्लम कुछ वेबसाइट्स कुछ पर्टिकुलर लिंक्स में है तो उनको बैन करो, उनको ब्लॉक करो, पूरा इंटरनेट मत बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि सब चीजें इंटर रिलेटेड हैं. नेक्स्ट इज रोल ऑफ इंटरनेट कंपनीज. एंगेज एंड कोलैबोरेट विद द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स एंड सिविल सोसाइटी टू प्रिवेंट डिसरप्शंस कॉज्ड बाय द शटडाउन्स. ठीक है, एक्टिवली इंगेज करो. ट्राई डूइंग R&D कि इंटरनेट शटडाउन ना करना पड़े. कुछ ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज या टेक्नोलॉजीज डेवलप हो जाए जिसमें पर्टिकुलर एरियाज में ही चीज़ें सॉर्ट आउट कर लें, बस्ट करें ऐसी चीज़ें. जैसे मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, तो उसको कैसे बस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे वो सोर्स है उसको हम कैसे बस्ट करके कैप्चर करके बस्ट कर दें. वो सब चीज़ें करो आप. सिलेक्टिवली ही चीज़ें रोको, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मत बर्बाद कर दो उसके लिए. डिफाइनिंग टर्म्स, सम वेग टर्म्स आर देयर. ठीक है, पब्लिक इमरजेंसी, व्हाट डज इमरजेंसी मीन, दिस हैज बीन लेफ्ट टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द ऑफिसर्स. वो डिफाइन करेंगे अपने हिसाब से इमरजेंसी क्या है, तो वो किसी भी चीज़ को भी इमरजेंसी बोल सकता है. तो दिस वेगनेस शुड बी क्लियरली डिफाइंड, दिस शुड बी रिमूव्ड. एम्बिग्विटी हटा देनी चाहिए. एग्जैक्टली लिख दो कि भाई ये दिस विल कम अंडर पब्लिक इमरजेंसीज. Next is improve digital literacy. Expand efforts to enhance digital media literacy and invest in digital security skills for the public so that public भी एक informed citizen की तरह एक अच्छे वे में, एक अच्छे नागरिक की तरह, लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह कोऑपरेट करे, फेक न्यूज़ र्यूमर्स वगैरह पे न जाए और ना ही फैलाए. ठीक है. नेक्स्ट इज फाइनल वर्ड, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड आफ्टर दीज सजेशंस. The decision on internet shutdown in India has far-reaching implications for fundamental rights and democracy. दोनों के लिए ही खतरा है, fundamental rights as well as democracy. It highlights the need for transparency, judicial control and public debate. तीनों ही चीज़ों की नीड है भाई. ट्रांसपेरेंसी लाओ आपके डिसीजंस में, जुडिशियल कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए और पब्लिक डिबेट भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. वाई पर्टिकुलर थिंग इज हैपनिंग. Further action is required to establish specific rules in line with the court's decisions and address existing issues with the blocked websites and secret orders. ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक डिस्क्लोजर में नहीं आती हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्डाइज चीज़ें कर दो, पहले से ही डिक्लेयर कर दो और मेक द इंफॉर्मेशन सच इन्फॉर्मेशन पब्लिक. ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट इज़ फाइन बट उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आता है, तो दिस द अथॉरिटी शुड कीप इन माइंड. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू. ओके, I hope you like the issues and you can watch all other series. This is the 6th issue in the series. We will cover 75 issues. ठीक है, आपको ये कैसा लगा? You should give your feedback in the comments, and if you want specific issues to be covered in this series, you can suggest us in the comment section. Till then, like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.